Good evening, everybody. बच्चे we had already finished up metals and non-metals. हमने उसकी back exercises वगैरह भी discuss कर ली थी, if I'm not wrong. So we are through with metals and non-metals. That was the last chapter of chemistry for this term. That is term 1. Okay. So बच्चे we are going to today start up with human eye and colorful world. This is the second chapter of physics that you have to take up for term 1. And बच्चे the initial portion of the chapter, that is the structure of eye, parts of various functions, then defects of human eye and their correction. बच्चे this portion has been deleted from the syllabus. ठीक है, तो ये portion हम नहीं कर रहे हैं. So we'll be starting up with topics that have to be taken up for your term 1 syllabus. That is refraction of light through a prism. यहाँ से बच्चे ये chapter शुरू करना है. So I hope there is no confusion. Human eye and colorful world का जो बच्चे initial portion है dealing with structure of human eye, parts and its functions and corrections and defects, वो delete हो गया है. ठीक है माधव? तो माधव सोच रहा था कि ये chapter कब शुरू हुआ. बच्चे आज ही हम शुरू करने जा रहे हैं, but I am going to start from the portion जो आपके syllabus में है. ठीक है? Is it clear everybody? Please don't get confused. ये chapter आज ही शुरू होने जा रहा है. हम वो पोर्शन शुरू कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है. इनिशियल पोर्शन डिलीट हो गया. ओके, चलो. सो बच्चे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन, द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ये बच्चे हमने लास्ट चैप्टर जो हमने लाइट का किया था फिजिक्स में, उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ा था. What do we understand by the term refraction? Okay, Madhav, it's all right, no problems. Bache, I hope everybody is viewing the recordings on the class app. Okay, Maths Online app जो है उस पे अब videos हम upload करते जा रहे हैं साथ साथ. So I hope most of the videos are not now visible. You have seen those videos. Are you able to view? I hope everybody is on Maths Online Bathinda app. Okay, we have uploaded the videos also. तो अब हम साथ साथ करते जाएंगे. So in case you miss the class also, you can then view it on the app. Okay, चलो. So I'm just going to quickly define refraction. बच्चे, when you talk about refraction, refraction का क्या मतलब है? How is refraction different from reflection? How is refraction different from reflection? तो बच्चे हमने ये सीखा था whenever light passes from one medium to another, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. ओके, देवा दत्तन बच्चे, you are absolutely right. Mudit, you are also absolutely right. It is bending of light. It is bending of light as it passes from one medium to another. So refraction is bending of light. Refraction is bending of light as it passes from one medium to another. As it passes from one medium to another. अब अच्छा, what is interesting is, interesting क्या है कि इसका reason जो है वो क्या है? What is the reason that refraction occurs? Okay, reason क्या है? Reason is, बच्चे, when you talk about speed of light, when you talk about speed of light in air or vacuum, vacuum में तो obviously सबसे ज्यादा होती है, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. And when light enters air, air में भी बच्चे कोई ज्यादा कम नहीं होती, it is 2.99 into 10 raised to power 8. तो we consider that speed of light is maximum in vacuum and air. उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसमें speed of light जो है maximum है. But बच्चे, as soon as light enters into any other medium, such as glass, water, oil, glycerin, what is going to happen? There is going to be change in speed. जब बच्चे लाइट एयर या वैक्यूम से किसी और मीडियम में जाएगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर इज गोइंग टू बी चेंज इन इट्स स्पीड.
और बच्चे जब उसकी स्पीड चेंज होगी उसकी वजह से आप क्या देखोगे, डिविएशन देखोगे, यू विल सी बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ओके, सो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, सॉरी प्रीवियस जो चैप्टर है लाइट का उसमें पढ़ा था। दिस अकर्स, या आप कह सकते हो इट अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज in speed of light. This occurs because of change in speed of light as it passes from one medium to another. तो बच्चे जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होती है और उस चेंज की वजह से उसकी बेंडिंग होती है। दिस लीड्स टू फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वी नीड टू रिमेंबर द मैक्सिमम स्पीड। ये आप लिख सकते हो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, light travels fastest in vacuum, or you can say air. और एयर। और बच्चे यहाँ जो स्पीड होती है ये सबको पता है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम अ प्रिज्म। ओके, आई विल जस्ट गो टू योर एनसीईआरटी बुक। What is a prism? बच्चे prism is a triangular surface. Okay, if you take a triangular glass prism, अगर आप एक triangular glass prism की बात करते हो तो ये कैसा होता है, it has 2 triangular bases इसके and 3 rectangular lateral surfaces. All right, it has 2 triangular bases, and 3 rectangular lateral surfaces. Okay, तो इसको हम क्या कहेंगे, you will call it a glass prism. And बच्चे these surfaces they are inclined to each other. Okay, ये एक दूसरे के साथ एक एंगल पे inclined होते हैं। I'll just show you a very simple diagram to understand how can we study refraction through a glass prism. बच्चे ग्लास प्रिज्म कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। तो बच्चे ग्लास प्रिज्म का एक्टिविटी भी हम करके देख सकते हैं सिमिलरली जैसे हमने बच्चे एक्टिविटी की थी इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की भी एक एक्टिविटी हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेसन में। इसमें हमें क्या करना है, यू हैव टू प्लेस 2 पिन्स हियर लाइक दिस, इनके थ्रू हम लाइट को देखेंगे। तो बच्चे व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज एज light passes through the glass slab, what is going to happen, it is going to deviate. Light क्या होगी, deviate होगी, it is going to deviate, all right, ऐसे bend होगी। and बच्चे once it emerges from the other surface, light parallel हो जाएगी to the original ray। अगर ये ग्लास तो बच्चे आपकी लाइट रे इस स्ट्रेट पाथ पे आती, but due to this glass slab there is refraction and your initial ray shifts from its original path. Okay, so बच्चे this is known as lateral displacement, इसको हम क्या कहते हैं, lateral displacement कहते हैं। alright, अब बच्चे ऐसा हम क्यों ऑब्जर्व कर पाते हैं, why are we able to observe this in a glass slab, because यहाँ बच्चे 2 parallel surfaces हैं। पर बच्चे इन केस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म यू हैव 2 surfaces which are inclined to each other. ओके, तो बच्चे हम इस एक्टिविटी में भी सेम यही कर रहे हैं। आप यहाँ 2 पिन्स प्लेस करेंगे, इनके ऊपर से जो लाइट रेज आ रही हैं, वी विल इमेजिन द लाइट रेज टू बी कमिंग ऑन टॉप ऑफ दीज पिन्स। ओके, जब इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी इट इज गोइंग टू अंडरगो रिफ्रैक्शन, एंड वंस इट इमर्जेस आउट, दिस इज द इमर्जेंट रे।
ओके, ये आपकी इमर्जेंट रे है। तो बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, और ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस एंगल के साथ आपकी इंसिडेंट रे बाहर आ रही है। अब बच्चे जस्ट इमेजिन, अगर आपका ये ग्लास अगर आपका ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये आपका ओरिजिनल पाथ है लाइट रे का, पर ड्यू टू प्रिज्म व्हाट हैज हैपेंड, द लाइट रे हैज डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और इस साइड को इमर्ज हो गई। तो बच्चे हाउ मच इट हैज डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये जो एंगल है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। अगर ये बच्चे प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे इस पाथ पे ऐसे कंटिन्यू करती, but due to presence of glass prism what has happened, it has undergone refraction at the first surface and when it emerges out from the second, तो यहाँ second refraction हुई, उसकी वजह से आपकी लाइट रे का पाथ देखो कितना चेंज हो गया, यहाँ को आ रही थी अब इस साइड जाने लगी, तो अपने ओरिजिनल पाथ से ये जो एंगल बनाएगी कितना डिविएट हुई है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ऑलराइट, so this is the activity by which we can understand or see refraction through a glass prism. तो बच्चे this is angle of incidence, ये आपका angle of incidence है, this is your angle of refraction, ये आपका दूसरा angle of refraction incidence बना, और यहाँ जो आपका emerge हुई है this is known as angle of emergence. Okay, I hope this labeling is clear to everybody. Okay, so this is how we can study refraction of light through a glass prism. बच्चे इसमें सारे टर्म्स क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इज दिस क्लियर? ओके, आई होप ये चैप्टर आपका क्लास में भी हो चुका होगा अब तक तो। ऑल राइट, चलो सो बच्चे वी विल क्विकली मूव ऑन, इस पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, वी विल क्विकली मूव ऑन टू डिस्पर्जन, जो ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो हमने पढ़ना है, जो देखो मैंने ऊपर आपको हेडिंग भी दिया हुआ है। सो बच्चे whenever you talk about dispersion of light, okay, what do we understand by the dispersion का क्या मतलब है बच्चे? dispersion means splitting of white light into its 7 constituent colors. What is dispersion? Dispersion means splitting. dispersion का क्या मतलब है? splitting of white, it is splitting of white light into 7 constituent colors. बच्चे we know that white light or pure white light is made up of 7 colors. तो dispersion जो है, dispersion का क्या मतलब है? dispersion is, it is splitting of white light. It is splitting of white light into 7 constituent what is dispersion? Dispersion is splitting of white light into 7 constituent colors. अब अच्छा क्वेश्चन ये राइज करता है कि डिस्पर्जन क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है? बच्चे वी नो दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। हमें पता है व्हाइट लाइट किसकी बनी है? द प्योर व्हाइट लाइट। ओके, द व्हाइट लाइट दैट वी सी, द व्हाइट लाइट, इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। The white light is composed of 7 colors. Okay. अब अच्छा यहां आपके दिमाग में एक बात आएगी कि अगर व्हाइट लाइट 7 कलर्स की बनी है तो जब व्हाइट लाइट एयर में ट्रेवल करती है या वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो हमें कलर्स तब क्यों नहीं दिखते? अब अच्छा इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है। Whenever white light is traveling in air or vacuum, जो बच्चे इसके 7 component colors हैं, they also travel with same speed. These 7 constituent colors of pure white light, they also travel with same speed in air or vacuum. But बच्चे what happens
व्हेन व्हाइट लाइट रीचेस अदर मीडियम, जब व्हाइट लाइट किसी और मीडियम से पास होता है तो क्या होता है, इन सब कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स की स्पीड अलग अलग होती है. ओके, सो द व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स एंड ऑल दीज 7 कलर्स, all these 7 colors, या आप सिंपली लिख सकते हो these 7 constituent colors, these 7 constituent colors these 7 constituent colors travel with the 7 constituent colors travel with same speed in air or vacuum. पर बच्चे what happens as soon as it passes into any other medium, फिर क्या होगा, इन 7 constituent colors की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है. But on passing, but when white light passes into any other medium, but when white light passes into any other medium, but when white light passes into any other medium, तो बच्चे क्या होगा, what is going to happen, then they have then the constituent colors, तो जो constituent colors होंगे उनकी स्पीड क्या होगी, they will all vary, colors have varying speed. ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं बच्चे उनकी वेरिंग स्पीड होगी, अलग अलग स्पीड होगी. तो बच्चे इसका इफेक्ट क्या होगा, द व्हाइट लाइट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स. दिस रिजल्ट्स इन dispersion, this results in dispersion of light and production of spectrum. ओके, अब बच्चे आपके दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि ये ग्लास स्लैब के अंदर क्यों नहीं हुआ. हमने ग्लास स्लैब में भी तो लाइट पास की थी बच्चे, हमने क्या वहां डिस्पर्जन डिस्कस किया है. व्हाट इज द रीजन यू डू नॉट सी डिस्पर्जन इन अ ग्लास स्लैब. उसके पीछे बच्चे एक बहुत सिंपल सा रीजन है. ग्लास स्लैब की जो दो सरफेसेस हैं जहां से रिफ्रैक्शन हो रही है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. उसकी वजह से क्या होती है, जो इनिशियल सरफेस पे जितनी रिफ्रैक्शन हुई है उसके ऑपोजिट रिफ्रैक्शन दूसरे सरफेस पे हो जाती है. तो बच्चे व्हाइट लाइट क्या होती है, इट अगेन रिकंबाइंस, तो हमें वहां डिस्पर्जन देखने को नहीं मिलती बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ऑलराइट, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो एक दूसरे से डिस्पर्स नहीं हो पाती. पर बच्चे व्हेन यू हैव अ एंगुलर सरफेस, जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर हो रहा है, दोनों सरफेसेस एंगल्स पे हैं, तो एज अ रिजल्ट ये इफेक्ट जो है ज्यादा क्या हो जाता है, ऑब्जर्व हो सकता है इजिली. तो आपकी जो कलर्स हैं वो क्या होते हैं, दे डिस्पर्स एंड दे विल प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रम. ओके, तो जो बच्चे सबसे पहले डिस्पर्जन है, सबसे पहले जो व्हाइट लाइट की डिस्पर्जन है वो किसने पढ़ी थी या किसने स्टडी की थी, दिस वाज स्टडीड बाय आइजक न्यूटन. ओके, सबसे पहले जो व्हाइट लाइट की बच्चे डिस्पर्जन है वो किसने स्टडी की थी, दिस फिनोमेना वाज स्टडीड बाय आइजक न्यूटन. ओके, आइजक न्यूटन ने बच्चे ये जो था फिनोमेना जो था स्टडी किया था. ओके, आई एम जस्ट all right, let me just see if I can okay, all right.
ओके, मुझे ये just a moment. I will have to pick this up from here only. I'll snip this through, no problems. Okay. I'll pick this diagram only. Okay. All right. So, bache, the phenomena of dispersion of light. This phenomena was first studied by Isaac Newton. Isaac Newton ने बच्चे इसको सबसे पहले क्या किया था, स्टडी किया था. तो बच्चे what he did was he took a glass prism लिया और बच्चे उसके थ्रू इन्होंने व्हाइट लाइट को पास किया. So what you can carefully see here is as the white light passes through the glass prism, what is happening is it is splitting into its 7 constituent colors, and this dispersion becomes more, you can say, observable or more magnified as it passes through the second surface. अब बच्चे this band of 7 colors, जो यहाँ आपको band of 7 colors दिख रहे हैं, this band of 7 colors is known as spectrum. Okay, this is known as spectrum. And बच्चे if you carefully notice, अगर आप carefully notice करोगे, the violet color is at the bottom of the spectrum. सबसे नीचे स्पेक्ट्रम में कौन सा कलर है, वायलेट कलर, और सबसे ऊपर कौन सा कलर है, रेड. If you see the band of colors, it is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ठीक है, थोड़ा सा मुझे तो कलर्स में डिफरेंस यहाँ कर पाना मुश्किल हो रहा है. मुझे तो सेकंड वाला ही रेड जैसा लग रहा है, पर पता नहीं इन्होंने इसको कैसे कलर शो किए हैं. ओके, सो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके स्पेक्ट्रम है 7 कलर्स का. ऑलराइट, तो बच्चे यहां हमें ये चीज समझनी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर. जो रेड की डिविएशन है, अगर आप रेड की डिविएशन देखो सबसे कम है. क्यों बच्चे, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज रेड हैज मैक्सिमम स्पीड. अगर आप एयर और वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में देखोगे व्हाइट लाइट को कलर्स के साथ, तो बच्चे रेड कलर हैज द मैक्सिमम स्पीड एंड वायलेट कलर हैज द लीस्ट. सो वायलेट हैज द लीस्ट स्पीड. जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में ऊपर जाएंगे स्पीड बढ़ेगी. ऑलराइट, दिस इज द रीजन व्हाट इज हैपनिंग. वायलेट इज सफरिंग द मोस्ट डिविएशन और रेड की सबसे कम डिविएशन हो रही है. तो आपको स्पेक्ट्रम में हमेशा रेड कलर सबसे ऊपर दिखाई देगा, वायलेट सबसे नीचे दिखाई देगा. ओके, सो दिस फिनोमेना, बच्चे दिस फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय आइजक न्यूटन. आइजक न्यूटन ने सबसे पहले ये फिनोमेना स्टडी किया था. ऑलराइट, न्यूटन स्टडीड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. Newton studied the dispersion of light. Newton studied the dispersion of light for the first time. और बच्चे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, what he observed was when white light is passed through a glass prism, what is happening, the white light is splitting into 7 colors. तो बच्चे स्पेक्ट्रम जो बना है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained on the screen, the band of 7 colors obtained on the screen is called spectrum. ओके, और बच्चे जरा ध्यान से देखिए, इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन सा कलर है, वायलेट सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर है. ओके, द कलर दैट सफर्स maximum deviation
is violet and least जो डिविएशन है कौन सफर कर रहा है, एंड लीस्ट डिविएशन कौन शो कर रहा है, एंड लीस्ट डिविएशन इज शोन बाय रेड कलर. ओके, तो बच्चे अगर आप इसका ऑर्डर फॉलो करो, अगर आप इसका ऑर्डर फॉलो करो तो कैसे होगा इसका ऑर्डर. ठीक है, इफ वी अरेंज दिस ऑर्डर, सो मैक्सिमम डिविएशन बच्चे किसकी है, वायलेट की है. सो वायलेट मैक्सिमम डिविएशन फॉलोड बाय इंडिगो, फॉलोड बाय ब्लू, फॉलोड बाय ग्रीन, फॉलोड बाय येलो, फॉलोड बाय ऑरेंज एंड फॉलोड बाय रेड. तो बच्चे रेड इज लीस्ट डिविएशन. देखो वायलेट मैक्सिमम डिविएशन, और हम जब इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेड इज लीस्ट डिविएशन. और इसके पीछे रीजन क्या है, वायलेट की सबसे कम क्या है, स्पीड. वायलेट हैज लीस्ट स्पीड, और सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, मैक्स. मैक्सिमम स्पीड किसकी है, रेड. ओके, तो जो मैंने ये ऑर्डर बनाया ऊपर, इट इज बेस्ड ऑन डिविएशन नॉट ऑन स्पीड. ये नीचे मैंने रीजन लिखा है कि वायलेट की मैक्सिमम डिविएशन क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे कम है. रेड की स्पीड सबसे ज्यादा है तो उसकी सबसे लीस्ट डिविएशन है. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. रेड की बच्चे मैक्सिमम स्पीड है, उसकी सबसे कम डिविएशन है. वायलेट की सबसे कम स्पीड है, सबसे ज्यादा डिविएशन उसमें है. सो ऑलवेज इन द स्पेक्ट्रम वायलेट विल बी बिलो and red will be at the higher end. Okay, so this is how spectrum is formed. अब बच्चे न्यूटन इन ऑर्डर टू प्रूव, न्यूटन ने जब ये डिस्पर्जन ऑब्जर्व की, सो ही आल्सो वांटेड टू प्रूव कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. इसको डिस्पर्स तो कर लिया, तो प्रूव कैसे करें. तो बच्चे उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाया. व्हाट ही डिड वाज he did recombination. Okay, तो व्हाट ही डिड वाज recombination में बच्चे उन्होंने क्या किया. Okay, I'll just pick this diagram again, just a moment, I'll pick this up. Okay, recombination में उन्होंने क्या किया, what he did in recombination में बच्चे उन्होंने क्या किया, he used this setup, ये setup उन्होंने यूज किया. Okay, he placed a inverted prism, उन्होंने क्या किया, एक इन्वर्टेड प्रिज्म को प्लेस कर दिया. ऑलराइट, इन्वर्टेड प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म. तो बच्चे फर्स्ट प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बना, एंड व्हेन दिस स्प्लिट लाइट आफ्टर डिस्पर्जन passed through the second inverted prism which was kept in front of it. तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो 7 कलर्स डिस्पर्स हुए थे बच्चे, दे रिकम्बाइंड एंड दे अगेन फॉर्म्ड व्हाइट लाइट. ओके, तो बच्चे इसका क्या इफेक्ट हुआ, जो आपका स्पेक्ट्रम बना था, इट रिकम्बाइंड, दिस स्पेक्ट्रम रिकम्बाइंड एंड इट अगेन फॉर्म्ड व्हाइट लाइट. ऑलराइट, सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज, न्यूटन ने क्या किया, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट white light is made up of 7 colors obtained in the spectrum न्यूटन ने बच्चे क्या किया, व्हाट ही डिड, ही प्लेस्ड अ इन्वर्टेड प्रिज्म.
in the path of spectrum. Newton placed a inverted prism in the path of spectrum as shown above. ओके तो उसका इफेक्ट क्या हुआ बच्चे, जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ था ऑन पासिंग थ्रू द सेकंड इन्वर्टेड प्रिज्म, व्हाट हैपेंड, इट रिकंबाइंड. ओके तो जो सेकंड इन्वर्टेड प्रिज्म था उसके थ्रू जब ये स्पेक्ट्रम पास हुआ उसकी वजह से क्या हो गई, रिकॉम्बिनेशन हो गई. ओके दिस spectrum on passing through the inverted prism recombined to form white light. ओके तो इसमें क्या हुआ, जब ये इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू लाइट पास हुई तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होगी दोबारा, टू फॉर्म व्हाइट लाइट. ऑलराइट तो बच्चे इससे क्या प्रूव हो गया, व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू, it led to the conclusion that white light is made up of 7 colors. Recombination के बाद भी दोबारा white light मिली. Okay, so this was proved by Isaac Newton. बच्चे I think in the lower classes आपने एक बहुत interesting activity करके देखी होगी, Newton's color disc. उसमें हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड को 7 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करके उसको स्पेक्ट्रम के कलर्स के साथ सीक्वेंस में क्या करते हैं, कलर कर देते हैं. And if you rotate that cardboard at very high speed, आपको कलर्स ओवरलैप होते हुए दिखाई देंगे. ऑब्वियसली अगर हम अपने हैंड से रोटेट कर रहे हैं तो इतनी स्पीड पे रोटेट नहीं होता, तो प्योर व्हाइट तो नहीं दिखेगा आपको, ग्रेइश सा दिखेगा क्योंकि कलर ओवरलैप हो जाएंगे. अगर आप उसको स्पीड पे घुमा पाओ, जैसे मोटर की साइड पे लगा के कहीं अगर आप उसको घुमा पाओ तो बच्चे नियरली व्हाइट दिखेगा आपको वो डिस्क, क्योंकि बच्चे जो आपके 7 कलर्स हैं दे विल ओवरलैप. सो दैट इज नोन एज न्यूटन्स कलर डिस्क. So that experiment can also prove that white light is made up of 7 colors. और अगर बहुत स्पीड पे वो ओवरलैप होंगे तो वो आपको व्हाइट की तरह ही दिखाई देंगे. ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके ऑलराइट तो बच्चे दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. अब बच्चे ये जो फिनोमेना था डिस्पर्जन, इट लीड्स टू मेनी नेचुरल फिनोमेनास. ओके उनमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, दैट इज production of rainbow. Very interesting phenomena which is known as rainbow. All right. अब बच्चे when you talk about rainbow, जब हम रेनबो की बात करते हैं बच्चे, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम. आप इसको एक तरीके से नेचुरल स्पेक्ट्रम कह सकते हो. All right, you can call it a natural spectrum. And there is one important thing that we have to understand कि रेनबो जो है बहुत इजीली नहीं बनता. इट इज अ रेयर फिनोमेना. ये क्या है, एक रेयर फिनोमेना है. इट इज नॉट समथिंग कि आप अगर ऐसे बोलोगे कि बहुत आसानी से बन जाता है, ऐसा नहीं होता. ऑलराइट इट इज अ रेयर फिनोमेना, बहुत रेयर फिनोमेना होता है और इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं. बच्चे अगर आपने कभी ऑब्जर्व करके देखा हो, रेनबो हमें जनरली कब दिखाई देता है, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून्स और लेट इवनिंग, कब दिखाई देता है जनरली? अगर आपने ऑब्जर्व किया हो रेनबो आपको कब दिखता है? दोपहर के टाइम दिखेगा, व्हेन द सन इज ओवरहेड. दोपहर में तो बच्चे रेनबो बनता ही नहीं है क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड है. तो जनरली यू विल सी इट इन लेट इवनिंग्स. जनरली आपको लेट इवनिंग्स में दिखती है, अर्ली मॉर्निंग में भी दिख सकता है. इसमें बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो सन है, द सन शुड बी लो इन होराइजन, द सन शुड बी लो इन होराइजन। ओके, सन जो है वो होराइजन में लो होना चाहिए। ऑलराइट, यानी डायरेक्टली ओवरहेड नहीं, तो इसलिए जनरली ये अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग्स में दिखता है। एंड बच्चे जो आपका ऑब्जर्वर है, अगर आप रेनबो देख पा रहे हो तो सन आपके पीछे होता है, सन आपके आगे नहीं होगा, सन विल बी बिहाइंड यू। ओके, अब बच्चे लेट्स ट्राई टू एनालाइज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग व्हेन रेनबो इज फॉर्म्ड। जब रेनबो बनता है तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, इसको हम एनालाइज करके देखते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्विकली डिफाइन व्हाट इज अ रेनबो। तो dispersion leads to a natural phenomena which is known as rainbow. Okay, rainbow is a natural spectrum formed by dispersion of sunlight through water droplets. ओके बच्चे, हमें क्या समझना है, जब बारिश होगी तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर फ्लोटिंग इन द एयर, दे विल एक्ट एज अ प्रिज्म। तो उनके थ्रू जब व्हाइट लाइट पास होगी तो इट विल डिस्पर्स, प्रोड्यूसिंग द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ अ रेनबो। तो बच्चे इसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। उसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म कि रेनबो बनता कैसे। तो व्हाट आर द कंडीशंस? Number one is sun should be low in horizon. Sun should be low in horizon. तो ये जनरली कंडीशन आपको कब मिलेगी बच्चे? अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, इस टाइम पे बच्चे सन जो है होराइजन में लो होता है। ओके, तो यही कंडीशन है। ओवरहेड तो नहीं हम देख पाएंगे। ओके, माधव इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय लो इन होराइजन। बच्चे लेट्स से दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ओके, तो बच्चे लो इन होराइजन का मतलब क्या है? या तो सन इधर हो या तो इधर हो, नॉट डायरेक्टली ओवरहेड। अगर आप यहां हो तो सन जो है होराइजन में लो होना चाहिए, ऐसे। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, मैंने गलत बना दिया है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी यूज दिस लाइन। अगर आप यहां हो ऑब्जर्वर तो सन आपके ऐसे होना चाहिए, लो, नॉट डायरेक्टली ओवरहेड। इज दैट क्लियर माधव? बताइए। लो इन होराइजन का मतलब है बच्चे अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, नॉट डायरेक्टली ओवरहेड, तब नहीं देख पाओगे आप। सेकेंडली, सेकेंड कंडीशन की क्या रिक्वायरमेंट है? जो सन है बच्चे ऑब्जर्वर की बैक पे होना चाहिए। सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। जो देख पा रहा है बच्चे ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए सन। सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। अगर बच्चे सन आपके सामने होगा तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा, आपके पीछे होना चाहिए सन। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए, मतलब बारिश के बाद ही दिखेगा ये। वाटर ड्रॉपलेट्स शुड बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बच्चे अगर वाटर ड्रॉपलेट्स ही नहीं होंगे एटमॉस्फेयर में तो रेनबो कैसे बनेगा? ओके, तो ये भी एक कंडीशन है, वाटर ड्रॉपलेट शुड बी प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। बच्चे कई बार आपने आर्टिफिशियल रेनबो भी देखा होगा, जैसे हमारा फाउंटेन होता है, फाउंटेन के पानी में भी दिख जाता है। पर हम जब नेचुरल की बात करते हैं, ओके सी अनेशा, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं एयर में। और बच्चे ये जो रेनबो है ये एक वाटर ड्रॉपलेट का इफेक्ट नहीं है, ये जो मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स का इफेक्ट है। ओके, तो वो जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स उसके थ्रू फ्लोट कर रहे हैं एयर में, उसके थ्रू जो लाइट डिस्पर्स हो रही है,
उसकी वजह से है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि वो ब्लिंक करता हुआ दिखना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा। इतनी तो बच्चे हमारी आई की नहीं होगी, क्या कहते हैं उसको, डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी इतनी तो हमारी आई की भी नहीं है, और वो इफेक्ट हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स पानी के फ्लोट कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स, आई एम टॉकिंग इन मिलियंस। वाटर ड्रॉपलेट कितने सारे फ्लोट कर रहे हैं एयर के अंदर, उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। अनिशा, इज दैट क्लियर? क्योंकि बच्चे एक पर्टिकुलर एंगल से जब वाटर ड्रॉपलेट्स मूव कर रहे हैं वहीं तो डिस्पर्जन हो रही है ना, इसलिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं जिधर हम अपने आप को आइस के थ्रू उसको डिस्टिंग्विश कर पाए। तो ऐसा नहीं होगा कि वो मूव करेगा या ब्लिंक करेगा, ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, चलो अब अच्छा लेट्स ट्राई टू एनालाइज हाउ दिस इज फॉर्मिंग, कैसे फॉर्म हो रहा है ये। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ वर्चुअल वाटर ड्रॉप फॉर यू। लेट्स से दिस इज माय वाटर ड्रॉप, ये मेरा वाटर ड्रॉप है, ठीक है। चलो, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जिट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द कलर। अब व्हाइट लाइट तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेट मी पिक अप एनी सूटेबल, ओके जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, कोई सूटेबल कलर ले लेता हूं। ओके, व्हाइट है, नहीं देख पाएंगे व्हाइट, इसके लिए मुझे डार्क पेज चाहिए होगा। आई जस्ट पिक अप एनी लाइट कलर, बच्चे उसको ले लेंगे कि ये व्हाइट है। ओके, चलो लेट्स से दिस इज आवर व्हाइट कलर, ये मेरा व्हाइट कलर है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा सा डायग्राम अलग तरीके से दिखाया हुआ है, ऊपर से दिखा रहे हैं। चलो जैसे वो दिखा रहे हैं मैं वैसे ही शो करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेट्स से दिस इज आवर व्हाइट लाइट। ओके बच्चे, कंसीडर दिस एज व्हाइट लाइट। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखो स्प्लिटिंग होगी एट द फर्स्ट सरफेस, splitting of light will occur and you will get the spectrum. So बच्चे at the first surface there is splitting of light. तो I'll just now pick up red. तो red यहां आ गया ऐसे, and I'll just pick up violet. Violet I am not sure which is the violet color. ये violet है. Okay. Excuse me if I'm very bad at picking up colors. Males are generally bad at picking up colors and finer shades. तो ऊपर वाला मैं रेड मान रहा हूं, नीचे वाला मेरा वायलेट है। अब अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज हैपनिंग एट द फर्स्ट सरफेस? यस, आराम इज सेइंग सो ट्रू। अब बच्चे इट इज एक्चुअली बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली कि men cannot distinguish between finer shades of color. फीमेल्स की जो एबिलिटी है कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने की, वो मेल से बहुत ज्यादा है, एंड इट इज ट्रू। अनीशा इज लाफिंग एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये प्रूव हुआ है। बट इट इज बिकॉज इन एवोल्यूशन में ऐसा ही हुआ है। मेन यूज्ड टू गो आउट फॉर हंटिंग, तो वहां कलर का क्या सिस्टम है, फीमेल्स यूज्ड टू स्टे एट होम। तो इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इट हैज हैपेंड, उसकी वजह से ये हुआ है। फीमेल्स को फाइनर शेड्स ऑफ कलर डिस्टिंग्विश करने में बहुत आसानी होती है। दे नो व्हाट इज डार्क रेड, व्हाट इज लाइट रेड, व्हाट इज फेंट रेड, व्हाट इज ब्लड रेड। हमारे लिए तो रेड एक ही है, ठीक है ना। तो मुझे तो वायलेट भी नहीं समझ आ रहा है इसमें वायलेट कौन सा है। चलो आई पिक्ड अप वायलेट, गलत है या सही आई डोंट नो। चलो सो बच्चे व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट सरफेस, देखो फर्स्ट सरफेस पे क्या हुई है, डिस्पर्जन हुई है। एट दिस सरफेस व्हाट हैज हैपेंड, डिस्पर्जन। ओके आई जस्ट पुट नंबर 1 हियर। नंबर 1 एट फर्स्ट सरफेस, जो पहला नंबर 1 है क्या है, इट इज डिस्पर्जन। नंबर 1 पॉइंट पे क्या हुआ है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन। अब बच्चे दिस इज द सेकंड, जब लाइट इधर आई, पर बच्चे लाइट बाहर नहीं एग्जिट हुई, वो उसकी रिफ्लेक्शन हो गई। बच्चे दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां से आपकी लाइट ऐसे आ गई। ऑलराइट, I'll just pick up the blue also. Blue नहीं, sorry, violet. पता नहीं कौन सा कलर मैंने पिक किया था। All right. Okay, the color has changed. मेरा शेड चेंज हो गया। Just a moment. मैंने दूसरा कलर पिक कर लिया। All right. Let me pick up the correct color. I think I picked up this. I don't know. Okay, सही है। यहाँ आ गया। All right. तो बच्चे यहाँ सेकंड पॉइंट पे क्या हुआ,
सेकंड पे हुआ बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अब बच्चे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? बच्चे दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। व्हाट हैपेंस इज whenever light travels from rarer, okay, Anisha is saying ये भी अलग है, ऑल राइट, ये भी अलग है क्या? चलो बच्चे, आई एम टर्निंग कलर ब्लाइंड, इतना ब्लू हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर पिक किया है, उसको उसको प्लीज वायलेट ही मान लो, आई डोंट नो। Okay, second phenomena is total internal reflection. Bache, I'll just briefly explain what is total internal reflection. Bache, we had studied in refraction. Let's say this is our surface of separation. This is our rarer medium. Sorry, not rarer. This is our denser medium. And this is our rarer medium. So bache, what we had studied. अगर आप कभी भी लाइट रे को फॉलो करो, light ray traveling from denser to rarer medium, what happens? It bends away from the normal, है ना? It bends away from the normal. All right. If you have a light ray which is traveling from denser to rarer medium, it will move away from the normal. अगर बच्चे आप ये एंगल बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? ऐसा कुछ होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप एंगल इतना बढ़ा दोगे कि लाइट रे ऐसे निकल जाएगी along the interface. अगर आप इससे ज्यादा होगे, what is going to happen? The light will not refract, it will reflect. तो बच्चे, this phenomena is known as total internal reflection. Whenever light ray travels from denser to rarer medium for a particular angle which is known as critical angle, light ray जो है अगर उस एंगल से ज्यादा पे गिरती है तो बच्चे वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, इट विल रिफ्लेक्ट। एंड बच्चे, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द ड्रॉप ऑफ वाटर। यहां जब आपकी लाइट रेज आके सेकंड सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं तो यहां बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। आप खुद सोचो ना, यहां से लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट कर सकती है? इट शुड गो आउट, पर बच्चे ये इस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट डेंस है, बाहर रेयर मीडियम है, ये इस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सूटेबल है, सो दे विल रिफ्लेक्ट अलोंग दिस पाथ। सो दिस सेकंड फिनोमेना, इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जिस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे जो है वो रेन ड्रॉप्स को एग्जिट नहीं कर पा रहा। इज इट क्लियर? सेकंड फिनोमेना सबको समझ आ गया? व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? whenever light travels from denser to rarer medium, एक पर्टिकुलर एंगल होता है उस पेयर के लिए, अगर लाइट रे उस एंगल से ज्यादा पे आएगी तो फिर रिफ्रैक्शन ही होगी, रिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है? एंड दैट फिनोमेना इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? अब बच्चे, लाइट रे यहां आ गई, ओके, अब क्या होगा? इस थर्ड सरफेस पे व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इस थर्ड सरफेस पे बच्चे रिफ्रैक्शन होगी। Okay, I'll just see your NCERT tag. Okay, थर्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन है तो यहां थोड़ा सा ऐसे नीचे दिखा देते हैं। Okay, I'll just pick up the blue or the violet, whatever I am thinking. Okay, तो बच्चे ये फिनोमेना है। अब बच्चे थर्ड पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं? थर्ड सरफेस पे व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, दिस इज द थर्ड सरफेस, ऑलराइट। और बच्चे थर्ड सरफेस पे हो रही है रिफ्रैक्शन। अब बच्चे, आई डोंट नो हाउ योर स्कूल टीचर्स हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू। आई थिंक उन्होंने सिंपली आपको बोला होगा कि फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रही है और सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है, और दे हैव टॉट यू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे पढ़ाया आपको? बच्चे, आपको ये तीनों फिनोमेना बताए थे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताइए। ओके, वेरी गुड। अनीशा इज सेइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताइए। ओके, क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी की बुक में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो वो सिंपली बोल देते हैं कि रिफ्लेक्शन हो गई, पर बच्चे हमें ये भी समझना है कि रिफ्लेक्शन कैसे हुई। लाइट रे तो अब बाहर भी जा सकती थी ना,
तो इट इज TIR, इट इज नॉट रिफ्लेक्शन, इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेन ड्रॉप के अंदर बचे तीन चीजें हो रही हैं। फर्स्ट सरफेस पे डिस्पर्जन, जहां स्प्लिट हो गया, स्पेक्ट्रम बन गया। सेकेंड सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड पे रिफ्रैक्शन होती है। एंड बचे दिस इज हाउ यू गेट द रेनबो, दिस इज हाउ यू गेट द रेनबो। Simran, I don't get the question. We have to also show the direction. I don't understand. मतलब जैसे मैंने डायग्राम बनाया एनसीईआरटी को देख के, ऑब्वियसली बच्चे उसी तरीके से बनाना है। व्हाइट लाइट ऊपर से आई, अंदर जाके रेड ऊपर आ गई, ब्लू नीचे आ गया, ऐसे डायरेक्शन तो बच्चे दिखाएंगे ना सही। आई होप सिमरन यही क्वेश्चन पूछ रही थी। ओके, ऑल राइट। तो बच्चे दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। ओके, इस तरीके से रेनबो फॉर्म होता है। दीज आर दी थ्री फिनोमेना। अब मैं बच्चे इसको एक बार रब कर रहा हूं। आई जस्ट राइट हियर फॉर यू व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मैं लिख देता हूं आपके लिए। ओके, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो दैट यू रिमेंबर इट। व्हाट इज TIR? whenever light passes from whenever light passes from denser to rarer medium, for a particular angle for a angle for a particular angle of incidence, अब बच्चे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। दिस इज इन डेंसर मीडियम। फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज क्रिटिकल एंगल, द लाइट रे will graze the interface। बच्चे ग्रेज दी इंटरफेस का क्या मतलब है? जो सेपरेशन है उसके साथ चली जाएगी बाउंड्री पे। फॉर एनी टू मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज नोन एज क्रिटिकल एंगल व्हेन द लाइट रे विल ग्रेज द इंटरफेस। ग्रेज द इंटरफेस मतलब जो उनकी सेपरेशन है उसकी बाउंड्री पे लाइट रे जाएगी। तो अगर बच्चे आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे आओगे तो क्या होगा? द लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक। ओके, इफ angle of incidence, if angle of incidence is greater than critical angle, if angle of incidence is greater than critical angle in denser medium, अब अगर बच्चे डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, फिर क्या होगा? What is going to happen? The light ray will suffer total internal reflection। ओके, आई होप बच्चे दिस फिनोमेना इज क्लियर टू यू नाउ। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया डेंसर मीडियम में, तो लाइट रे क्या करेगी? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द रेन ड्रॉप। ओके, रेन ड्रॉप के अंदर बच्चे यही सेम फिनोमेना हो रहा है। ओके, दिस इज द रेन ड्रॉप। ओके, रेन ड्रॉप के अंदर यही सेम फिनोमेना हो रहा है। और बच्चे ये जो व्हाइट लाइट आ रही है इट इज फ्रॉम सनलाइट। ऑल राइट, और यहां ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? ऑब्जर्वर इज एबल टू सी दी रेनबो। ऑब्जर्वर इज एबल टू सी दी रेनबो। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर एवरीबडी? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
Okay, all right. चलो, so बच्चे this is how rainbow is formed. तो बच्चे this is based on dispersion of light. आज बच्चे हम यहीं रुकेंगे. We will stop here. In the next session we'll be picking up atmospheric refraction. जो बच्चे हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट. एंड बच्चे अगर हमें टाइम मिलेगा देन विल मूव ऑन टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट आल्सो. तो probably we'll be able to finish off this chapter in the next session. And बच्चे in the next session the syllabus for term 1 will be also over. हमारा जो term 1 का syllabus है बच्चे physics, chemistry and bio, that is completed. Okay, तो next session में कोशिश ये रहेगी कि ये chapter complete हो जाए. So we'll be through our term 1 syllabus. All right, चलो. So बच्चे I'll be stopping here today. We'll continue with atmospheric refraction in the next session. हाँ जी माधव बोलो. सर बायो के टर्म 1 में कौन से चैप्टर आ रहे हैं? बच्चे इन टर्म 1 बायोलॉजी यू आर ओनली गेटिंग लाइफ प्रोसेसेस, दैट्स इट. माधव, इज दैट क्लियर? माधव, in term 1 biology you are only getting life processes. Chemistry you are getting chemical reactions, equations, acid bases, salts, metals, non metals. तो वो भी हम खत्म कर चुके हैं. And in physics light का पूरा चैप्टर इनिशियल वाला and human eye and colorful world. तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हम नेक्स्ट सेशन हम क्लास लग रही है, मतलब जो वेडनेसडे को हमारी क्लास लगेगी तो टर्म 1 का हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा एक बार. ओके, सो विल बी थ्रू आवर टर्म 1 सिलेबस. All right, I hope that is clear to everybody. Okay, so bache I'll be ending the session here. We'll continue the chapter in the next class.